بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو وقار ویل وشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز علامہ محمد اقبال کے شعر سے کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پیارے بچوں، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم کلاس 9 کمپیوٹر کے چیپٹر نمبر 1 کے MCQs کو سٹارٹ کریں گے۔ کیونکہ چیپٹر نمبر 1 بہت زیادہ لانگ ہے تو اس لیے ہم نے اس کے MCQs کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو 1 بائی 1 ہم اس کے MCQs کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے MCQs کی جانب۔ Which early computing device؟ اب دیکھیں ہمارے پاس early computing device use beards on rods for arithmetic calculation۔ نیپیئرز بونز آپ کے پاس ایک ڈیوائس تھی جو جان نیپیئر نے اس کو انوینٹ کیا تھا۔ یہ آپ کے پاس راڈز پہ ورکنگ کرتا تھا اور سمپل ملٹیپلیکیشن کرتا تھا۔ سیکنڈ آپ کے پاس آ گئی پاسکلائن آپ کے پاس ایک ڈیوائس تھی جو ایک بلیز پاسکل سائنسدان تھا، اس نے اپنے نام سے اس کو کیا کیا تھا، انوینٹ کیا تھا، اور یہ زیادہ تر گیئر اور ویل کو یوز کرتا تھا فار کیلکولیشن کے لیے۔ اور ابیکس آپ کے پاس یہ ایک سمپل کیلکولیٹنگ ڈیوائس تھی۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آج ہمارے پاس کمپیوٹر ہے جو اس کی بنیاد رکھی گئی بالکل شروع میں جب اس کو انوینٹ کیا گیا تھا تو یہ سمپل ایک ڈیوائس تھی، ابیکس تھی۔ اور اسٹیپ راک آنر یہ ایک میکینیکل کیلکولیٹر تھا جو فنکشن پرفارم کرتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ارلی کمپیوٹنگ ڈیوائس تھی جو یوز کرتی تھی بیٹس آن راڈز فار ارتھمیٹک کیلکولیشن، وہ آپ کے پاس ابیکس تھا۔ چلتے ہیں اس کے نیکسٹ MCQs کی جانب۔ Who invented Napier bonds which introduced decimal point system؟ Napier bonds تو ہمارے پاس جان نیپیئر تھا، اس نے اپنے ہی نام پہ اس ڈیوائس کو رکھا تھا، جس نے کیا کیا تھا، ہمیں ایک ڈیسیمل نمبر سسٹم کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو جان نیپیئر نے اپنے ہی نام پہ اس ڈیوائس کو رکھا تھا۔ نیپیئر بونڈ جو انوینٹ ہوا تھا وہ جان نیپیئر نے کیا تھا، اور جو اس کی فنکشن تھی یہ ڈیسیمل پوائنٹ سسٹم کے اوپر فنکشنز کو کیا کرتا تھا، پرفارم کرتا تھا۔ چلتے ہیں اس کے نیکسٹ MCQs کی جانب۔ The Pascaline invented by Blaise Pascal in 1642 used which mechanism for calculation؟ پنچ کارڈ۔ بیسیکلی ہمارے پاس جو پنچ کارڈ تھا یہ ٹیبلیٹنگ مشین میں ہم استعمال کرتے تھے۔ گیئر اینڈ ویل جو بلیز پاسکل نے انوینٹ کیا تھا اس میں جو میکانزم تھا فار کیلکولیشن کے لیے وہ آپ کے پاس تھا گیئر اینڈ ویل۔ ویکیوم ٹیوب ہم یوز کرتے تھے فرسٹ جنریشن کمپیوٹر میں، اور جو ٹرانزسٹر تھے اس کو ہم یوز کرتے تھے سیکنڈ جنریشن میں۔ تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بلیز پاسکل میکانزم کیلکولیشن کے لیے یوز کرتا تھا وہ آپ کے پاس تھا گیئر اینڈ ویل۔ یہ اس کا رائٹ آپشن ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ MCQs کی جانب۔ Which of the following was a steam powered machine designed by Charles Babbage for solving numerical problem؟ اب بیسیکلی دیکھیں جو چارلس بیبیج تھا نا، اس نے یہ دونوں ڈیوائس کو انوینٹ کیا تھا، انالائٹیکل انجن کو بھی اور ڈفرنس انجن کو بھی۔ یہ جو دونوں ڈیوائسز تھے نا یہ انوینٹ کی تھی چارلس بیبیج نے، لیکن فار سالونگ نیومیریکل پرابلم یہ جو ڈفرنس انجن تھے نا یہ ہمارے پاس ایسی ڈیوائس تھی جو ہمارے پاس نیومیریکل پرابلم کو کیا کرتی تھی، سالو کرتی تھی۔ یہ مارکور اور انیک یہ بعد میں جو آنے والے کمپیوٹرز تھے یہ 1944 اور 1945 میں ان کو ہم یوز کرتے تھے۔ تو لیکن جو دونوں ڈیوائسز جو چارلس بیبیج نے انوینٹ کی تھی وہ ایک انالائٹیکل انجن تھی اور ایک آپ کے پاس ڈفرنس انجن تھی، لیکن ڈفرنس انجن جو تھی یہ ہمارے پاس نیومیریکل پرابلم کو فردر کیا کرتی تھی، سالو کرتی تھی۔ چلتے ہیں اس کے نیکسٹ MCQs کی جانب۔ The analytical engine designed by Charles Babbage introduced which concept for input؟ تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پنچ کارڈ تھا یہ ایز اے انپٹ استعمال کر رہا تھا کون، چارلس بیبیج فار دیئر کیلکولیشنز۔ میگنیٹک ٹیپ بعد میں انوینٹ کی گئی تھی، اور یہ آپ کے پاس کی بورڈ اور اسکینر یہ تو ماڈرن ڈیوائسز ہیں جو آج کل کے کمپیوٹرز میں ہم کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کے نیکسٹ MCQ۔ ہرمن ہالرتھ ٹیبلیٹنگ مشین لیڈ بائی دا فاؤنڈیشن فار وچ کمپنی؟ مائکروسافٹ یہ بل گیٹس کی کمپنی تھی، اور IBM والے جو تھے نا یہ ہرمن ہالرتھ کی جو ٹیبلیٹنگ مشین تھی یہ فاؤنڈیشن تھی
IBM वालों की। ये जो एप्पल है या इंटेल है ये बाद में आने वाली कंपनीज थी, इन्होंने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए थे, लेकिन जो आपके पास टैबुलेटिंग मशीन जिस चीज़ के ऊपर बेस कर रही थी, बाद में वो जो कंपनी थी वो IBM में क्या हो चुकी थी, कन्वर्ट हो चुकी थी। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलाई ऑन विच कोर टेक्नोलॉजी। आपके पास जो वैक्यूम ट्यूब्स थी ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में यूज हो रही थी। हमारे पास जो ट्रांजिस्टर था ये हमारे पास यूज हो रहा था सेकंड जनरेशन में। IC सर्किट जो थी ये हमारे पास थर्ड जनरेशन में यूज हो रही थी, और जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर था ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन में यूज हो रहा था। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट जनरेशन का जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन है कि वैक्यूम ट्यूब हम यूज करते थे फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो आपके पास कौन सी थी, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहे थे। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि सेकंड जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी। इसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो आपके पास है फोर्ट्रान और कोबल, ये आपके पास सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हैं। आपके पास पाइथन एंड जावा ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और C और C++ 1970s के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी, और असेंबली लैंग्वेज तो पहले से ही इन्वेंट हुई थी। तो दूसरी जनरेशन में जो हमारे पास लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी उसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है फोर्ट्रान और कोबल। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। इंटीग्रेटेड सर्किट IC डिफाइन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि थर्ड जनरेशन में आपके पास जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी वो आपके पास IC थी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट MCQ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन है तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। वो टेक्नोलॉजी भी फोर्थ जनरेशन में थी, बेसिकली वो माइक्रो प्रोसेसर ही हैं। तो अगर आपके पास लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाए या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ जाए तो भी इसका ऑप्शन जो होगा वो यही होगा। माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसको लिख सकते हैं, या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की। ये हमने इसको डिस्कस किया था कि आपके पास लार्ज स्केल हो या वेरी लार्ज स्केल हो तो ये माइक्रो प्रोसेसर ही है बेसिकली। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट MCQs। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोकस ऑन विच फील्ड। जो आपके पास फिफ्थ जनरेशन है इसका जो मेन फोकस है वो मेन फोकस था आपके पास AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास AI है। वर्चुअल रियलिटी या क्वांटम कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग पे ये काम नहीं करती। इसका मेन फोकस था कि AI यानी कि कंप्यूटर खुद ब खुद इस एबिलिटी पे आ जाए कि वो खुद से सोचने समझने और खुद से डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। फिफ्थ जनरेशन का मेन गोल यही था कि यानी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करे। नेक्स्ट जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच कैपेबिलिटी। फास्टर प्रोसेसिंग ओनली, क्या उसका मेन फोकस यही था कि सिर्फ स्पीड को बढ़ा दिया जाए। लर्निंग, रीजनिंग एंड ऑटोनोमस प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो ये थी कि लर्निंग, रीजनिंग एंड ऑटोनोमस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी वो इस काबिल हो जाए कि वो ह्यूमन बीइंग की तरह खुद से डिसीजन लेने के काबिल हो जाए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है। लार्जेस्ट स्टोरेज ओनली या स्मॉलर इन साइज, ये दोनों इसके राइट ऑप्शन नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। A system is defined as a collection of interconnection components working together to achieve individual goal। नहीं, हम इसको इस मकसद के लिए नहीं बनाते कि ये किसी इंडिविजुअल गोल्स को सॉल्व कर दे। टू सॉल्व सम स्पेसिफिक गोल्स, जाहिर सी बात है अगर हम किसी सिस्टम को डिजाइन करेंगे तो हमारे माइंड में कुछ स्पेसिफिक गोल होंगे जिसको हमने अचीव करना होगा। रैंडम गोल्स इसका ऑप्शन नहीं हो सकता और नो गोल्स तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई एक सिस्टम बनाते हैं तो इस सिस्टम से हमारे पास कुछ स्पेसिफिक गोल्स होते हैं जिसको हमने पूरा करना होता है। नेक्स्ट MCQs। नेचुरल सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय, देखिए अगर आपके पास जो नेचुरल सिस्टम है तो ह्यूमन इंटरवेंशन की उसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन एंड एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि वो नेचुरल सिस्टम होगा तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है।
आर्टिफिशियल एनर्जी, ये तो आर्टिफिशियल सोर्स हो जाएगा, और प्री डिफाइंड रूल भी इसका एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो नेचुरल सिस्टम होगा तो उसके अंदर जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो होगा सेल्फ रेगुलेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम। अब देखिए हमारे पास नेचुरल सिस्टम है, इंटरनेट नेचुरल सिस्टम है? नहीं, इंटरनेट हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। पावर ग्रिड है, ये भी हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है। इकोसिस्टम है, तो इकोसिस्टम आपके पास नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल में आ सकता है। फैक्ट्री है तो ये मैन मेड थिंग होगी, तो ये भी आर्टिफिशियल सोर्स में आएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। आर्टिफिशियल सिस्टम आर डिजाइन एंड बिल्ड बाय ह्यूमंस टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड्स एंड ऑफन रिक्वायर नो मेंटेनेंस के। क्या जब हम कोई आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं तो हमें इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती? ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस का मतलब होता है कि क्या कभी कभी हमें इसको मेंटेन करना पड़ता है? यस, ये इसका ऑप्शन हो सकता है। सेल्फ रिपेयर, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। और नेचुरल एनर्जी तो इस क्वेश्चन से रिलेट ही नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम है तो मैन मेड थिंग्स होगा। वेदर पैटर्न, ये नेचुरल है, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। सोलर सिस्टम, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको इंसान खुद बनाता है तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम में आ सकता है। और ह्यूमन बॉडी भी एक नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल में आती है। तो इसका मतलब जिसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। इन नेचुरल सिस्टम एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड सनलाइट एंड वाटर फ्लो while artificial system is typically used। अब आर्टिफिशियल सिस्टम है, क्या वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करता है? नो, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जब हम कोई भी एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं, आप इसमें कोई भी इसकी एग्जांपल ले लें, जैसे हाइड्रोथर्मल है या कोई भी जो है जो हम खुद उसको बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको इलेक्ट्रिसिटी या डिफरेंट किस्म की एनर्जीज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी ये एक नेचुरल सोर्स है, और सोलर एनर्जी भी इसमें इसका आंसर नहीं हो सकती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है आर्टिफिशियल एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड दैट सर्व। देखिए मदरबोर्ड है तो आपके पास पावर सप्लाई, नो। मदरबोर्ड हम यूँ कह सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, इस वजह से कि मोस्टली जो डिवाइसेस हैं जो कनेक्ट होती हैं वो जाके मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर में हमारे पास एक मैन बोर्ड होता है, और मोस्टली फंक्शंस या मोस्टली जो डिवाइसेस हैं वो इसी के साथ अटैच होती हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर है। क्या ये सिर्फ स्टोरेज डिवाइसेस है? नो। क्या ये एक आउटपुट डिवाइस है? नो। तो इसका राइट ऑप्शन है कि बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, which component of the CPU handle mathematically operation and logical operation। जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट्स मीन के प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं। और अगर हम लॉजिक की ऑपरेशन की बात करेंगे तो जब वहाँ पे भी हम कंपैरिजन करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन, तो इसमें इसका जो राइट ऑप्शन है वो ALU है, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों यूनिट फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। द CU कंट्रोल यूनिट, देखिए नाम से ही जाहिर है कि ये कंट्रोल है, कहीं ना कहीं ये चीजों को क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, नो, ये आपके पास ALU का काम है। मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज, जाहिर सी बात है कंट्रोल कर रहा है, दैट्स मीन ये मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन या जो भी वर्किंग परफॉर्म हो रही है उसको जो हैंडल कर रहा है वो आपके पास CU यानी कि कंट्रोल यूनिट है। स्टोरिंग डेटा परमानेंटली और कन्वर्टिंग एनालॉग सिस्टम, इसका मतलब है CU कंट्रोल यूनिट बेसिकली ये कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर सिस्टम को। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रजिस्टर इन अ CPU आर, बेसिकली रजिस्टर हमारे पास एक स्मॉल बट टेम्परेरी मेमोरी होती है। लार्ज एंड स्लो स्टोरेज यूनिट्स, नो। टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस विद इन द CPU, यस, कि ये टेम्परेरी स्टोरेज होता है। परमानेंट स्टोरेज, नो। और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि रजिस्टर आपके पास एक स्मॉल टेम्परेरी मेमोरी होती है जो डेटा को अपने अंदर थोड़े वक्त के लिए क्या करती है, स्टोर करती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, चिप बेस्ड स्टोरेज या वोलाटाइल स्टोरेज। अगर हम ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें तो उसके अंदर आपके पास आ जाता है CD और DVD।
और मैग्नेटिक स्टोरेज, अ हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज दैट स्टोर डाटा ऑन मैग्नेटाइज्ड प्लेटर। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। चिप बेस में आपके पास आ जाता है SSD और USB इसके अंदर आ जाती है, जबकि जो हार्ड डिस्क है वो एक नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि इसके कंटेंट लॉस नहीं होते जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है मैग्नेटिक स्टोरेज। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज विच टेक्नोलॉजी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। स्पिनिंग डिस्क हो जाएगा, तो ये हार्ड डिस्क ड्राइव इसके अंदर होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका राइट ऑप्शन है कि ये आपके पास जो SSD है वो जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे, लेज़र बीम इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती। और मैकेनिकल कंपोनेंट्स, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। इसका मतलब है जो SSD है जो डाटा स्टोर करती है इंफॉर्मेशन को, वो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फिर आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQ की जानिब। Which of the following storage devices is the fastest and the most durable? Fast और most durable, हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो है, CD भी बहुत स्मॉल डाटा अपने अंदर स्टोर करती है, इसकी भी स्पीड बहुत तेज नहीं है। तो हमारे पास जो SSD होती है ये फास्ट होती है और मोस्ट ड्यूरेबल होती है। और आपके पास जो मैग्नेटिक टेप है ये अपने अंदर इतना डाटा स्टोर नहीं करती, इसकी भी स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है। तो हम आप कह सकते हैं कि जो SSD है ये आपके पास एक फास्टेस्ट मेमोरी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQ की जानिब। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली देखें जो आपके पास प्रिंटर होता है इसके दो टाइप होती हैं, एक आपके पास होती है इम्पैक्ट और दूसरी आपके पास होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपके पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये प्रिंटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिन्स। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इनकी क्वालिटी अच्छी होती है क्योंकि ये पिन्स को इस्तेमाल नहीं करते, ये वैक्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये जो ड्रम प्रिंटर है और ये जो चेन प्रिंटर है, ये सारे के सारे आपके पास टाइप्स में आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास जो इस सिनेरियो में आ जाएगा वो आ जाएगा इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर जो है वो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स में आता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब। एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड्स आर अलाउड फॉर। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक चीज को बढ़ा देना, किसी कैपेसिटी को बढ़ा देना। एडिंग मोर मेमोरी ओनली, क्या हम सिर्फ मदरबोर्ड पे सिर्फ मेमोरी को बढ़ा सकते हैं? नो। इंस्टॉलिंग एडिशनल हार्डवेयर टू एक्सपेंड फंक्शनैलिटी, ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है कि जिस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हमने उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, मदरबोर्ड पे लगा के उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। कनेक्टिंग आउटपुट डिवाइसेस, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। और इंस्टॉलिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है एक्सपेंशन स्लॉट्स हम कब यूज करते हैं, जब हमने किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की कैपेसिटी को बढ़ाना हो तो हम उसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर is based on concepts of stored program computer। yes, ये बेसिकली स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, यानी कि इसका जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये मेमोरी और काम एक ही जगह पे हो रहा होता है। आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोरेज एरिया है जो किसी और जगह पे होता है, और पैरेलल प्रोसेसिंग भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो इसको परफॉर्म नहीं करता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं। इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम डाटा आर स्टोर्ड इन सेपरेट मेमोरी, नो। सेम मेमोरी, यस। इसमें क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है और जो प्रोग्राम है वो हमेशा सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं। डिफरेंट प्रोसेसेस या डिफरेंट बसेस को ये इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है और जो इसका प्रोग्राम है ये दोनों सेम जगह पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। नेक्स्ट MCQs। द ALU, नाम से ही जायद है कि ALU आपके पास होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्या ये सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करता है? नो। क्या ये लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है? नो। बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये नाम से ही जाहिर है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये दोनों को परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी और लॉजिक ऑपरेशन को भी। चलते हैं इसके नेक्स्ट MCQs की जानिब।
memory address register MAR hold the data being processed? No. The memory location of data to be accessed, ये आपके पास memory address register का काम होता है. The current instruction? No. Intermediate arithmetic result, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है. बेसिकली जो memory address register है वो क्या करता है, memory location सेव करता है data to be accessed. Next MCQ. The program counter PC register contain the current instruction being executed, ये इसका ऑप्शन नहीं है. इसका जो रजिस्टर होता है वो आपके पास होता है IR यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. सेकंड आपके पास है द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये आपके पास होता है PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर का काम. इंटरमीडिएट अरिथमेटिक रिजल्ट, ये जो इंटरमीडिएट अरिथमेटिक रिजल्ट होते हैं ये बेसिकली स्टोर होते हैं अकामुलेटर रजिस्टर में. और डाटा बीइंग ट्रांसफर टू मेमोरी, ये मेमोरी रजिस्टर का काम है यानी कि MAR. तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास है PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट, विच बस कैरी द एड्रेस ऑफ द डाटा बिटवीन द प्रोसेस एंड द मेमोरी. डाटा बस है, ये डाटा को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह. कंट्रोल बस है, ये कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगी एक जगह से दूसरी जगह. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास एड्रेस बस है. एड्रेस बसेस का काम है कि ये एड्रेसेस को लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह. तो ये इसका राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट, द कंट्रोल बस, देखिए नाम से ही जायद है, ये कंट्रोल बस है. डाटा बिटवीन प्रोसेस एंड मेमोरी, नो. एड्रेस को कैरी करेगी, नो. कंट्रोल सिग्नल एंड कमांड्स फॉर द CPU, क्योंकि कंट्रोल बस का काम ही कंट्रोलिंग है तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा. ना ना अब आप, ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है. तो इसका मतलब है जो कंट्रोल बस है वो क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल और कमांड फ्रॉम द CPU. नेक्स्ट, इन द कंप्यूटर सिस्टम कैशे मेमोरी, आपके पास जो कैशे मेमोरी होती है इज द लार्जेस्ट बस लोएस्ट मेमोरी, नो. द फास्टेस्ट बस द स्मॉलेस्ट मेमोरी, ये राइट ऑप्शन है कि आपके पास कैशे मेमोरी होती तो बहुत स्मॉल है लेकिन वो फास्ट मेमोरी होती है. द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट, नो. और द स्लोएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट मेमोरी, आपके पास बेसिकली जो कैशे मेमोरी होती है ये होती है स्मॉलेस्ट मेमोरी बट फास्टेस्ट मेमोरी आपके पास होती है. तो ये इसका राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs. द इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ CPU फॉलो विच सीक्वेंस. इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो सीक्वेंस होता है वो होता है सबसे पहले फेच, फिर डीकोड और फिर एग्जीक्यूट. तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर B होगा कि सबसे पहले फेच होता है, फिर डीकोड आता है और फिर आपके पास एग्जीक्यूट होता है. बाकी सारे गलत हैं क्योंकि उनका जो सीक्वेंस है इसके अकॉर्डिंगली नहीं है. नेक्स्ट MCQs. पाइपलाइनिंग इन CPU allows processing one instruction at a time, processing multiple instructions simultaneously in stages, slower processing speed और larger memory capacity. बेसिकली पाइपलाइनिंग आपके पास कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोसेस मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली इन डिफरेंट स्टेजेस, ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है पाइपलाइनिंग का. नेक्स्ट MCQs. A bit is the smallest unit of memory representing 8 bits, a decimal digits, a binary digit 0 और 1 और a character. बेसिकली बिट्स हमारे पास एक स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है और ये अपने अंदर एक चीज को स्टोर कर सकता है, या 0 को या 1 को. तो नेक्स्ट MCQs. 1 बाइट इज इक्वल टू, हमारे पास ये जो 1 बाइट होता है बेसिकली ये 8 बिट के बराबर होता है. ये 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. फिर हम आगे हमारे पास ये फर्दर फिर हम बिट्स को मिलाते हैं, बाइट बनता है, फिर बाइट को बनाते हैं तो किलो बाइट्स, फिर मेगा बाइट्स और इस तरीके कार से आहिस्ता आहिस्ता जो मेमोरी कैपेसिटी है वो उसका साइज बड़ा होता जाता है. नेक्स्ट MCQ. 1 किलो बाइट इज इक्वल टू, सबसे पहले आप ये याद रख लें, सबसे पहले हमारे पास छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, फिर आपके पास आता है बाइट, फिर आता है किलोबाइट, फिर मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट. ये इस तरीके कार से हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे. बेसिकली जो हमारे पास 1 किलोबाइट होता है, देखें किलोबाइट के पीछे आपके पास क्या लिखा हुआ है, बाइट. इसका मतलब जब हम 1024 बाइट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास बन जाता है
किलो बाइट्स। फिर इसी तरीके कार से अगर आप मेगा बाइट्स पे जाएंगे तो वो 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे, गीगा से जाएंगे तो पीछे 1024 मेगा बाइट्स को मिलाएंगे। इस तरीके कार से हम ये स्मॉलेस्ट मेमोरी से लार्जर मेमोरी की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट MCQ 1 गीगा। अब देखें मैंने आपको सीक्वेंस बताया था किलो मेगा गीगा, तो देखें गीगा से पीछे आ रहा है मेगा, तो ये 1024 जो मेगा बाइट होगा ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs, which type of memory require power to retain data and is used for temporary storage। हमारे पास बेसिकली जो वोलाटाइल मेमोरी होती है ये इस तरह की मेमोरी होती है, ये अपने अंदर तब तक डेटा स्टोर करती है जब तक हम इसको इलेक्ट्रिसिटी या पावर प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी या पावर हम इसको प्रोवाइड करना बंद कर देंगे तो इसके जो अंदर से डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। और नॉर्मली हमारे पास ये कौन सी होती है, ये हमारे पास ये जो रैम होती है बेसिकली ये हमारे पास वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी। फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी इस तरह की मेमोरी होती है कि उसके अंदर से कंटेंट लॉस नहीं होते, जैसे कि आपके पास रोम आ जाएगा। फिर ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी ये अदर टाइप्स है। मेन दो कंसेप्ट्स आपके पास होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नेक्स्ट MCQs, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे पास एक वोलाटाइल मेमोरी की टाइप में आता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQs, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी स्टोर विच इसेंशियल सिस्टम कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर डेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली जो रोम में डाटा स्टोर होता है वो आपके पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो हमारे पास रोम में स्टोर होता है। नेक्स्ट MCQ, विच टाइप ऑफ कैशे मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट लोकेटेड डायरेक्टली विद इन द प्रोसेसर कोड। हमारे पास देखें अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास प्रोसेसर है तो दरमियान में हमारे पास इसके साथ एक लेवल 1 कैशे होती है, फिर दरमियान में आपके पास एक लेवल 2 होती है और ये आपके पास लेवल 3 होती है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वो आपके पास लेवल 1 कैशे की होती है जो आपके पास बिल्कुल प्रोसेसर के साथ होता है। इसका राइट ऑप्शन है L1 यानी कि लेवल 1 कैशे। नेक्स्ट MCQs, चिप बेस्ड सेकेंडरी मेमोरी इंक्लूड हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ये चिप मेमोरी नहीं होती। SSD, USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये जितने भी हैं ये सारे किस में आते हैं, ये चिप बेस्ड मेमोरी में आते हैं। CD और DVD भी हमारे पास चिप में नहीं आती और फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास चिप में बेस्ड मेमोरी में नहीं आती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास SSD, USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड्स। नेक्स्ट MCQ, ऑप्टिकल मेमोरी यूज विच टेक्नोलॉजी टू यूज रीड एंड राइट। देखें ऑप्टिकल है तो ऑप्टिक्स से निकला हुआ है और ऑप्टिक्स में जो मेन काम होता है वो लेजर बीम का होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास होगा लेजर बीम। मैग्नेटिक फील्ड ऑप्टिकल मेमोरी से रिलेट नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता और सेमीकंडक्टर चिप्स भी इसका आंसर नहीं हो सकता। चलते हैं इसके नेक्स्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो उससे हार्डवेयर से तो कोई रिलेटेड नहीं होगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। नेटवर्क डिजाइन या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ। नेक्स्ट MCQs, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फोकस ऑन डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्स एंड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये आपके पास आ सकता है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोस्टली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनके अंदर स्टोर कर दिए जाते हैं और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इसमें नहीं आ सकता। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट MCQs, हार्डवेयर इंजीनियरिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, अब हार्डवेयर इंजीनियरिंग है तो उसका सॉफ्टवेयर से कोई रिलेशन नहीं होगा। फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि ये फिजिकल कंपोनेंट है तो हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट को बोलते हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल या डेटाबेस सिस्टम इसके अंदर नहीं आ सकते। नेक्स्ट MCQs, सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो ये नहीं हो सकता।
हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। बेसिकली ये इसका एग्जैक्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एज अ इंटरमीडिएरी, यानी ये इन दोनों के लिंक बनाता है, इन दोनों के दरमियान इनको इन काबिल बना देता है कि ये आपस में वर्किंग परफॉर्म कर सके। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है, ये इसका राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी करता है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट और स्केड्यूलिंग, प्रोसेस स्केड्यूलिंग, ये तीनों काम तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इसका मतलब जो इसका राइट ऑप्शन है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करता। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द डिवाइस ड्राइवर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन टू एप्लीकेशन, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस, ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली डिवाइस ड्राइवर जो है हार्डवेयर डिवाइस को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी फंक्शनलिटी क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। टू हार्डवेयर डिवाइसेस का ऑप्शन नहीं हो सकता। द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, यूटिलिटीज सच एज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड डिस्क डिफ्रैगमेंट आर एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिल्मवेयर। तो ये आपके पास जो इसका राइट ऑप्शन आ सकता है वो सिस्टम यूटिलिटीज है, बाकी जो ऑप्शन है वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंपाइलर एंड असेंबलर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है कि बेसिकली जो कंपाइलर और असेंबलर हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेशन करते हैं फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज, firmware is a software that is permanently stored on hard disk, USB devices, हार्डवेयर डिवाइसेस या क्लाउड स्टोरेज। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन हो सकता है वो आपके पास ये हो सकता है कि ये हार्डवेयर डिवाइसेस पे क्या होता है, स्टोर हो सकता है। क्लाउड स्टोरेज, यूएसबी या हार्ड डिस्क के ऊपर ये स्टोर नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आता है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर के काम को आसान बनाते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये यूजर के काम को बहुत आसान बना देता है। इसका मतलब है ये इसका जो राइट ऑप्शन हो सकता है वो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, क्विक बुक्स एंड सेल्स फोर्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है? नो। क्या ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है? नो। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेली लाइफ में हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बिजनेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, माइनक्राफ्ट, स्पॉटिफाई एंड नेटफ्लिक्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं? नो। क्या ये बिजनेस सॉफ्टवेयर हैं? नो। क्या ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हैं? यस। और ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यानी कि LMS लाइक यू लर्न ऑन एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये बिजनेस सॉफ्टवेयर में आता है? नो। क्या ये एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में आता है? नो। ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में आता है। बेसिकली इन सॉफ्टवेयर से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये एजुकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी नहीं आता। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ विच कोड्स, सिंबॉलिक कोड्स, बाइनरी कोड 0 and 1, हाई लेवल सिंटेक्स या निमोनिक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बेसिकली जो मशीन कोड है ये पेयरली मशीन लैंग्वेज यानी 0 और 1 पे बेस करती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास 0 and 1। अगर आपके पास सिंबॉलिक कोड्स आ जाएं तो ये आपके पास असेंबली लैंग्वेज में आ सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज में तो प्योरली इंग्लिश लैंग्वेज होती है, और निमोनिक्स भी असेंबली लैंग्वेज के कोड्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, असेंबली लैंग्वेज यूज सिंबॉलिक कोड्स कॉल्ड, जो उसके सिंबॉलिक कोड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, कंपाइलर कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन 1 स्टेप, मल्टीपल स्टेप्स, 2 स्टेप या रियल टाइम। बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, ये एज अ होल ट्रांसलेशन करता है, तो इसके लिए एक स्टेप भी
काफ़ी है। इसी कंपाइलर को अगर हम इंटरप्रेटर में चेंज कर दें तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो कंपाइलर एज अ होल करता है, तो इसलिए इसके लिए एक स्टेप भी काफ़ी है। ये इसका राइट ऑप्शन है। Which type of programming language organize codes around objects that represent real world entity? Procedural language, structured language, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में पहले एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता था और फिर बाकी चीज़ों को उसी के साथ एसोसिएट कर दिया जाता था, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सी एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नो। क्या ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है? ये लॉन्ग प्रोसीजर्स को फॉलो करती थी? नो। क्या ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है? यस। ये क्या करती थी, चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड यानी मॉड्यूल में डिवाइड करती थी, फिर वन बाय वन हम एक एक मॉड्यूल को क्या करते थे, सॉल्व करते थे, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। और असेंबली लैंग्वेज तो ये इससे मिलता जुलता नहीं, ये इररेलेवेंट ऑप्शन है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन आपके पास आ रहा है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। बेसिकली क्या करती थी, ये लार्जर प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करती थी, फिर एक एक मॉड्यूल को फर्दर सॉल्व करती थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, Java, C++ and Python are example of which type of programming language? क्या ये प्रोसीजर लैंग्वेज को फॉलो करते थे? नो। क्या ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी? नो। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ये इसका राइट ऑप्शन है। और मशीन लैंग्वेज तो ऑलरेडी इररेलेवेंट ऑप्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग इज एन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ? क्या ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करती थी? नो। क्या ये सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज यूज करती थी? नो। ये समटाइम दोनों को यूज करती थी, यानी बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज को ये यूज करती थी। और ना बाब इसका राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन ये है कि बोथ हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज आर टू बी यूज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वेब डेवलपमेंट एंड डाटा एनालिसिस आर लो लेवल लैंग्वेज? नहीं, high level language. Yes, web development and data analysis are important uses of high level language. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ये हाई लेवल लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी को यूज करती थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, the first high speed printer was developed in the 1953 for use on which computer? ENIAC, UNIVAC, IBM 604 या मार्क 1? ENIAC पहले प्रीवियसली कंप्यूटर्स में था, लेकिन ये प्रिंटर को इस्तेमाल नहीं करता था, तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो UNIVAC है। IBM 604 और मार्क 1 भी प्रिंटर को इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए गए थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास UNIVAC है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, डिजिटल कैमरा कैप्चर फोटोग्राफ एंड वीडियो दैट कैन बी अपलोडेड टू अ कंप्यूटर फॉर प्रिंटिंग ओनली? ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। एडिटिंग, शेयरिंग और इंक्लूजन इन डिजिटल प्रोजेक्ट, ये इसका राइट ऑप्शन हो सकता है कि उसमें एडिट भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे, सिर्फ स्टोर नहीं करते थे, और डिलीट का भी इसका राइट ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एडिटिंग, शेयरिंग और इंक्लूजन इन डिजिटल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द साइज ऑफ मेमोरी वर्ड कैन बी रेंज फ्रॉम 60 to 64 बिट्स डिपेंडिंग ऑन? क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है? क्या ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे यानी इसके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है? स्टोरेज कैपेसिटी पे डिपेंड करता है या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पे डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ मेमोरी वर्ड जो डिपेंड करता है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, 64 बिट CPU कैन प्रोसेस डाटा इन चंक्स ऑफ हाउ मैनी बिट्स? 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स या 128 बिट्स? बेसिकली 64 बिट CPU है, तो ये 64 बिट जो डाटा का जो चंक्स बनाएगा वो 64 बिट्स ही होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैग्नेटिक मेमोरी स्टोर डाटा ऑन लेजर रीड पिट्स? नो। मैग्नेटाइज मटेरियल? यस, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल है, मेमोरी है, तो मैग्नेटाइज मटेरियल इसका सही आंसर हो सकता है। ये दोनों इसके सही ऑप्शन नहीं हो सकते। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द अकामुलेटर रजिस्टर इज यूज टू स्टोर, ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपके पास इंटरमीडिएट अरिथमेटिक एंड लॉजिक रिजल्ट्स को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कंपाइलर? तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपके पास
یہ ہمارے پاس سسٹم سافٹ ویئر کی ٹائپس میں نہیں آتا. چلتے ہیں اس کے نیکسٹ MCQs کی جانب. The first generation of computer was programming using assembly language, machine language, high level language یا Fortran. کیونکہ یہ فرسٹ جنریشن آف کمپیوٹر تھے تو یہ مشین لینگویج کیا کرتے تھے, پروگرامنگ جو ہوتی تھی وہ مشین لینگویج میں ہوتی تھی. نیکسٹ MCQs. Which of the following is a feature of natural system. کہ اس میں کون سی کریکٹرسٹکس جو ہے وہ نیچرل سسٹم کی ہے کہ دے ریکوائر ہیومن اپڈیٹس, کیونکہ نیچرل سسٹم ہے تو اس میں ہیومن اپڈیٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دے آر ڈیزائن فار اسپیسیفک ہیومن پرپز, نو. دے کین اڈاپٹ اینڈ ایوالو آٹونومسلی, یہ اس کا رائٹ آپشن ہے, کیونکہ جو نیچرل چیزیں ہیں اس کو ہم خود بناتے نہیں ہیں, وہ خود بخود ان کے اندر جو بھی تبدیلی ہوتی ہے وہ نیچر کی طرف سے ہوتی ہے. تو جس کا رائٹ آپشن ہے کہ دے کین اڈاپٹ اینڈ ایوالو آٹونومسلی, یہ اس کا رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ MCQs. سرکٹ الاؤ ٹو کمپیوٹر. اب بیسیکلی IC جو تھی وہ تھرڈ جنریشن میں تھی, استعمال ہوئی تھی ٹیکنالوجی, تو اس کا بیسیکلی پرپز کیا تھا کہ بیکم اسمالر, فاسٹر اینڈ مور ایفیشینٹ. IC ہی کی وجہ سے جو ہمارے کمپیوٹر کا سائز تھا وہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہونا شروع ہو گیا تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس جنریشن. تو یہی اس کا رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ MCQs. Which of the following correctly pairs a generation with its defined technology. کیا فرسٹ جنریشن میں ٹرانزسٹر استعمال ہو رہے تھے؟ نو, اس میں ویکیوم ٹیوب استعمال ہو رہی تھی. سیکنڈ جنریشن مائکرو پروسیسر, نہیں, سیکنڈ جنریشن میں ہمارے پاس ٹرانزسٹر استعمال ہو رہے تھے. تھرڈ جنریشن انٹیگریٹڈ سرکٹ یعنی IC, تو یہ اس کا رائٹ آپشن ہے. اور فورتھ جنریشن میں مائکرو پروسیسر تھے. تو اس کوشچن کے اکارڈنگلی جو اس کا رائٹ آپشن ہے وہ آپ کے پاس آپشن نمبر 3 ہے. نیکسٹ MCQs. The BIOS یعنی کہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم از اسٹورڈ آن وچ ٹائپ آف میموری. بیسیکلی جو BIOS ہوتا ہے وہ ہمارے پاس روم کے اندر کیا ہوتا ہے, اسٹور ہوتا ہے. یہی اس کا رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ MCQ. Which of the following best describe the role of linker in a software development. Convert high level code into machine code, یہ تو ٹرانسلیٹر کا کام ہے. Combine multiple object file into a single executable file, یہ آپ کے پاس لنکر کا کام تھا کہ یہ ملٹیپل فائلز کو لنک کرتا تھا آپس میں. مینیج ہارڈ ویئر ریسورسز, یہ اس کا آپشن نہیں ہو سکتا. اور پرووائڈ اے یوزر انٹرفیس, یہ بھی اس کا آپشن نہیں ہو سکتا. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کمبائن ملٹیپل آبجیکٹ فائلز انٹو اے سنگل ایگزیکیوٹیبل فائلز. نیکسٹ MCQs. A plotter is used for printing. اسمال ڈاکومنٹس, اگر ہم نے اسمال ڈاکومنٹس میں اس کو پرنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو پرنٹر ہے وہی کافی ہے, تو یہ اس کا آپشن نہیں ہو سکتا. ہائی کوالٹی فوٹوگرافس, یہ اس کا صحیح آپشن نہیں ہے. لارج اسکیل گراف لائک انجینئرنگ ڈیزائن, کیونکہ جب ہم کسی بھی چیز کو ایک پیج سے زیادہ ڈیزائننگ کرتے ہیں تو پھر وہ پرنٹر پہ پاسبل نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ہم پلاٹر کو کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. یہی ہمارا رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ MCQs. The difference between natural and artificial system lies in. کیا وہ سائز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ نو. Their origin and adaptability, یہ آپ کے پاس رائٹ آپشن ہے کہ ہم اوریجن اور اڈاپٹیبلٹی کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ نیچرل سسٹم ہے یا آرٹیفیشل سسٹم ہے. کاسٹ سے نہیں بتا سکتے. اور دیئر کمپلیکسٹی اونلی, یہ بھی اس کی کوئی خاص کریکٹرسٹکس میں نہیں آ سکتا. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے دیئر اوریجن اینڈ اڈاپٹیبلٹی. نیکسٹ MCQs. اسی کے ساتھ چیپٹر نمبر 1 کے جو پارٹ 1 کے MCQs تھے, بیسیکلی جو چیپٹر نمبر 1 تھا وہ بہت زیادہ لانگ تھا, تو اس لیے میں نے چیپٹر نمبر 1 کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو اس کے چیپٹر نمبر 1 کے جو پہلے پارٹس تھے یہاں تک ہم نے MCQs کو سالو کر لیا ہے. آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ راضی ہو جائیں. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات اچھے ہیں یا برے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے مگر ہمیں وہ دیتا بھی ضرور ہے جس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. پیارے بچوں, محنت کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.